सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BA थर्ड ईयर ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। BA थर्ड ईयर ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮਪਣ ਹੈ, ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਇਹੀ ਭੋਲਾਪਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਨ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਸ਼ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਸ਼ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੈਰਾਨ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੈਰਾਨ ਦਿਲ ਵਰਗੇ ਬੀਆਬਾਨ ਵੀਰਾਨ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਨ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ
ताड़दा होया जदों चुप चारे पासे चुप छा जाती है, उस समय घर वड़दा हाँ तां मैं उस समय इसलिए घर वड़दा हाँ क्योंकि रस्ते विच कोई मैनूं मिल ना पवे, कोई मेरिया अखां दे विच अखां पा के ये ना देख लवे कि इन्हां अखां दे विच पहला वर्गा पानी है, कोई मेतों ये ना मेरे हुसन नूं मेरी जिंदगी नूं मेरी अखां दे विच पढ़ ना लवे, देख ना लवे, कोई मैनूं ये ना पुछ लवे कि तेरे हुसन ने झरीटा किस तरह चर लईआं, कोई मैनूं ये ना पुछ लवे कि तेरी जिंदगी दे विचों प्यार जिहड़ा सी तेरी जिंदगी दा इश्क किसने खो लिया है। सो इसे करके कहते मैं जिहड़ा हाँ हनेरे होए वापस आउंदा हाँ, कहते मैं हनेरे होए वापस आउंदा हाँ क्योंकि जेकर किसी ने मेरे कोलों ये प्रश्न पूछ लिया कि तेरी जिंदगी दे विचों जिंदगी दा इश्क जिहड़ा सी प्यार जिहड़ा वो किसने खो लिया तो मैं शर्म नाल मर जावांगा। मैं हर चीज़ जर जाता हाँ, हर चीज़ बर्दाश्त कर जाता हाँ, पर ये नहीं जर सकांगा कि मेरे तो कोई इस तरह का आके प्रश्न पूछे। क्योंकि मैं बेगैरत नहीं हाँ, मैं बेअणखा नहीं हाँ, मैं बेगैरत नहीं हाँ। सो कहते मैं इसे लिए उस समय वापस मुड़दा हाँ जदों सूरज छिप चुका हुंदा है, पश्चिम दे विच मसान सड़ चुके हुंदे हन, तारे जिहड़े हन वो जमीन दे नाल सॉरी आसमान दे हिक दे नाल लग चुके हुंदे हन, मतलब निकल चुके हुंदे हन। सो कहते मैं उस टाइम वापस मुड़दा हाँ जदों गश जिही बेहोशी दे विच सारा जहान सौ चुका हुंदा है। सो इस तरह के जिहड़े ख्याल हन जिहड़ी ये कविता दे विच साडे जिहड़े कवि ने वो भरन की कोशिश की हन। इत्थों तक असीं पिछली क्लास में की, बाकी दी जिहड़ी रह गई रचना है वो असीं अज लैके हाजिर होए हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास के वालों कि अगे जिहड़ा कवि है वो की कहता है। सो कहते गश जिही बेहोशी विच भूख सौ चुका हुंदा ए कुल जहान, सारे दा सारा जहान कहते मैं उस समय वापस आउंदा हाँ जदों सारे दा सारा जिहड़ा जहान है वो गश जिही बेहोशी दे विच सौ चुका हुंदा है, फिर भी तू सौंदी नहीं। फिर कहता है कि तू क्यों नहीं सौंदी, फिर भी तू सौंदी नहीं, तू अपने नैना दे विच इंतजार भर के बैठी रहनी है, तू क्यों सौंदी नहीं, तू क्यों इंतजार भर के जिहड़ा है अपने नैना दे विच बैठी रहनी है। मेरी बेबख्ती है ये मेरी बदकिस्मती है, मेरी बेबख्ती है मेरी बदकिस्मती है ये कि तू मेरा इंतजार करती हुन्नी है। जदों मैं आउंदा हाँ तू सौंदी नहीं, अपनी अखां विच इंतजार भर के मेरा इंतजार करती है, क्यों भरी जानी है। कहता तू मेरा इंतजार क्यों करी जाती है, क्यों भरी जानी है। दिन दिन तेरे नैना विच शिंगार, तू अपने नैना दे विच दिनों दिन शिंगार क्यों भरती जा रही है, क्यों तेरे दिन दिनों दिन सोहने हुंदे जा रहे हैं, क्यों करी जानी है दिन तेरे नक्शा नूं हुसीन, तू क्यों अपनी नैन नक्शा नूं दिनों दिन हुसीन जिहड़ा है सोहना करती जा रही है। कहते तू क्यों नहीं सौंदी, तू अपने नैना दे विच मेरा इंतजार भर के क्यों मेरा इंतजार करती रहती है। ये मेरी बदकिस्मती है कि तू मेरा इंतजार करती हुंदी है। तू क्यों दिनों दिन अपने नैना दे विच जिहड़े नैन हन उन्हां दे विच होर शिंगार भरती जानी है, क्यों तेरा नैन नक्श दिनों दिन होर सोहने हुंदे जा रहे हैं। तू बड़ी मासूम है, अगला पैरा जी कहते तू बड़ी मासूम है, तू की जाने इंतजार, तू ये इंतजार के बारे विच की जानती है, तू की जाने इंतजार। कहते तू नहीं जानती कि जिहड़ा ये इंतजार तू करती है वो इंतजार मुड़ मका दिंदा है मेरे बुझ रहे दिल दे अंगार। कहते जिहड़ा तू ये इंतजार करती है, तू नहीं जानती ये जिहड़ा इंतजार है वो मेरे दिल दे विच बुझ चुके जिहड़े अंगार हन, तेरे प्यार दे जिहड़े हन, तेरे प्यार दे जिहड़े अंगार, जिहड़ा मैं तेरा प्यार जिहड़ा अपने दिल दे विच दफन कर दिता सी उन्हां अंगारां नूं तेरा जिहड़ा ये सोहणापन होर भी ज़्यादा भड़का दिंदा है। फिर आउंदा है दिल विच मेरा, फिर इहो आउंदा है दिल विच मैं तेरा आशिक बन जावां। कहंदे फिर मेरे दिल दे विच मेरे जिहड़े वो अरमान जिन्हां नूं मैं दबा दिता सी वो मुड़ उजागर हुंदे हन, मुड़ भखदे हन, तां मेरे दिल विच यही आउंदा है कि मैं तेरा दोबारा तो आशिक बन जावां। तेरियां मैं सोहणियां अखियां दे काबिल, मैं तेरियां जिहड़ियां ये सोहणियां अखां हन उन्हां दे दोबारा तो काबिल बन जावां। फिर भरम चाहता हाँ मैं
फिर समझदा हाँ मेरा काम है प्यार, इश्क मुड़ के समझ बैठा हाँ सच, फिर भरम जाता हाँ मैं, फिर समझदा हाँ मेरा काम है प्यार, इश्क मुड़ समझ बैठा हाँ सच। अब इश्क असल असलियत नहीं, असल है पिंडे दी खो। फिर कहंदे जेड़ा मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ तेरा आशिक बनना चाहता हाँ, मुड़ तो मैं तेरिया इन्हां सोहणियां अखां दे काबल बनना चाहता हाँ। ते फिर तो कहंदे मैं तेरिया अखां दे जोग बनना चाहता हाँ। ते इस तरह तेरा जिहड़ा इंतजार है, तेरे इस इंतजार दे विचों उपजिया होया तेरा सुहप्पड़ कहंदे वो मैनू मुड़ तो भरमा लैंदा है, ते मैं समझण लग जांदा हाँ। मुड़ तो मैनू कहंदे मैनू भरमा लैंदा है, मैं फिर तो भरम जाता हाँ। मैं समझदा हाँ कि मेरा काम है प्यार, ते कहंदे मैं इस गल नूं समझ लैंदा हाँ कि मेरा काम तां सिर्फ ते सिर्फ तेरा जिहड़ा प्यार है, तैनूं इश्क करना है। मुड़ मैं ये समझ बैठा हाँ सच सच, कहंदे फिर मैं जिहड़ा ये प्यार है इस नूं दोबारा तो सच समझ बैठदा हाँ। पर मैनूं असल विच इश्क असलियत नहीं है, पर कहंदे बाद विच मैनूं समझ आउंदी है असल विच ਇਹ इश्क जिहड़ा है वो हकीकत नहीं है। ये तो सिर्फ ते सिर्फ है पिंडे दी खो, ये तो सिर्फ ते सिर्फ ही एक शरीर दी जिहड़ी खो है, भुख है। कहंदे ये असल नहीं है। असल गल की है? असल है ढिड दा तनूर, असल गल तां ढिड दी भुख है। कहंदे असल तेरा प्यार असल नहीं है, ये इश्क सच नहीं है, तो सिर्फ ते सिर्फ शरीर दी खो है। कहंदे असल दे विच तां असल जिहड़ा चीज़ सच है वो है ढिड दी भुख, जिस लई पिंडे ते जरदा हाँ चांदी दी लाश। इस जिहड़ा कहंदे असल विच जिहड़ी ढिड दी भुख है वो सच है, जिस दे लई मैं अपने शरीर दे उपर मैं कहंदा जिहड़ियां चांदी दी लाश जिहड़ी है, मतलब असल दे विच वो चीज़ सच है जिस दे उपर मतलब जिहड़ी सच है वो है भुख, जिस दी खातर जिहड़ा मजदूर दा जिहड़ा शरीर है वो चांदी दी लाश असल अर्थात पैसियां दी खातर दुख सहंदा है। चांदी दी लाश मतलब पैसियां दी खातर दुख सहना, पैसियां दी खातर दुख जिहड़ा है असल विच जिहड़ा कहंदा सहंदा है, ये असल सच है। चांदी दी लाश पैसियां दी जिहड़ी है कहंदा पैसियां दे लई जिहड़ा मैं दुख बर्दाश्त करदा हाँ वो सच है, जिस लई आपे ही सिख जांदी है जुबान जी हजूर। कहंदे जिहड़ी सच है वो है ढिड दी भुख, जिस दे लई मैं पैसे प्राप्त करन दे लई कहंदे दुख सहंदा हाँ, चांदी दी लाश सहंदा हाँ, पैसियां दे लई मैं दुख सहंदा हाँ। ते जिस दे लई जिन्ना पैसियां नूं प्राप्त करन दे लई कहंदे जबान जिहड़ी आपे ही जी हजूर कहना सिख जाती है। सो असल नहीं सीने च शौक, कहंदे असल जिहड़ा तेरे जिहड़े कहंदे असल वो सच नहीं हन, जिहड़े मेरे मन के शौक हैं, मेरे दिल के शौक हैं वो असल सच नहीं हैं। असल नहीं सीने च शौक, जिहड़े दिल के शौक हैं वो असल नहीं हैं, ना ही असल है उन्नत नज़र, ना ही ऊपर की हुई नज़र सच है। कहते जब मैं गरीब हाँ तो मेरी नज़र हमेशा नीवी रहती है। सो मेरे दिल के शौक असलियत नहीं हैं, ना ही मेरी उतां चुकी हुई नज़र सच है। असल है मुर्दा जमीन, सच्चाई तो यह है कि मेरा जिहड़ा जमीर है वो मर चुका है। असल है मेरा मरिया हुआ जमीर, असल है मेरी नीवी की हुई नज़र। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मैं गरीब हाँ, मजदूर हाँ, मेरे कोल इन्नी पूंजी नहीं है कि मेरे तेरे शौक पूरे कर सका, जां जिहड़ी तेरी जिहड़ी भुख है उसनूं खत्म कर सका। सो कहंदे असल है मेरा मरिया होया जमीर, मुर्दा जमीर, ते असल है
कहते मेरी नीवी कीती हुई नज़र। सो असल दे विच कहते जिहड़ी सच्चाई है वह है ढिड दी भुख, जिस दे खातर कहते चांदी दी लाश पैसिਆਂ दी खातर वह दुख सहंदा है, जिस दी खातर जुबान अपने आप जी हजूरी करनी सीख जाती है। मेरे दिल के शौक असल च नहीं हैं, ना ही मेरी उतां की हुई नज़र सच है। असल सच तो सिर्फ ते सिर्फ कहते मेरा मरिया होया जमीर है, मुर्दा जमीर है, ते असल विच है मेरी जिहड़ी नीवी कीती हुई नज़र। सो कहते तैनू सौ है पिंडे दी खो दी। सो अपने सरीरक जिहड़ा है संबंधां दी अपने उन्हां दी सौं दिंदे होए जिहड़ा मजदूर है अपनी पत्नी नूं कहंदा है, सौ है तेनू पिंडे दी खो दी, इस तरह कीता ना कर तू इंतजार। सो कहंदे तेनू मेरे प्यार दी सौं है, तू इस तरह मेरा इंतजार ना करया कर। असल नहीं जरा विच प्यार, कहंदे प्यार असलियत नहीं है, क्यों जगा रखदी है दीवा डांट डांट ते। तू डांट दे उपर कंध दे उपर डांट दे उपर जिहड़ा दीवा है उसनूं क्यों जगा के रखदी है। मैं कोई बच्चा नहीं, भुल नहीं सकता मैं राह, मैनू लैर दी लोड़ नहीं, किस लिए मेरा स्वागत रोज रोज, क्यों मैनू चेता कराए रोज रोज मैं हाँ महान। सो कहते तू क्यों डांट दे उत्ते दीवा जगा के रखदी है, तू क्यों मेरे लिए चानन करदी है। कहते मैं कोई बच्चा नहीं हाँ जो मैं भुल जावांगा राह, जो मैं रास्ता भुल जावां। सो मैनू लै दी, मैनू रोशनी की लोड़ नहीं है, तू क्यों दीवा जगा के रखदी है, मैनू रोशनी की लोड़ नहीं है, किस लिए मेरा रोज रोज स्वागत करदी है, मैं इस स्वागत के काबिल नहीं हाँ। तू हर रोज रोज मेरा स्वागत क्यों करदी है, क्यों मैनू रोज रोज ये चिट्टा कराउंदी रहंदी है कि मैं महान हाँ, क्यों तू मैनू महान बनाउण दी कोशिश करदी है, क्यों मैनू रोज रोज ये याद कराउंदी है कि महान हाँ। सड़ जाऊ ये आलना, फिर जिहड़ा मजदूर है वह कहता है तेरा ये आलना सड़ जाएगा, उजड़ जाएगा तेरा सारा जहान, जर नहीं सकनी तू बिजली कहर दी, रब नूं है मंजूर कि संसार विच कोई ना होवे महान। सो कहता है कहना तेरा बेड़ा ए तू मैनू हर रोज महान बना छड़दी है, कहते तू मैनू इस महान क्यों बनानी है, तेनू मैनू महान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं महान है ही नहीं। कहते क्यों तू अग उगाउण वाले जिहड़े अग लगाउण वाले जां अग उगाउण वाले जिहड़े समान हन उन्हां दा प्रबंध करदी है, क्यों तू अजिहा करदी है, ये अग दे नाल तेरा सारे दा सारा जहान सड़ जाएगा, तेरा आलना सड़ जाएगा, तेरा आसरा खत्म हो जाएगा, तेरा जहान खत्म हो जाएगा, तेरा जिहड़ा जहान है वो उजड़ जाएगा, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी बिजलियां कहरां दियां, तू इस तरह पैदा हुई कहर दी बिजली नूं सह नहीं सकेंगी। कहते रब नूं ये मंजूर नहीं है कि कोई महान होवे, रब नूं ये मंजूर नहीं कि दुनिया दे विच कोई महान होवे, कहते फिर तू मैनू महान बनाउण दी कोशिश क्यों करदी है। सो कहते तू इस तरह ना करया कर, तेनू मेरे दिल के अरमानां नूं जगाउणा नहीं चाहिदा, तेनू ये अग उगाउण वाला समान लगाउण वाला समान होर नहीं बनाउणा चाहिदा, तू मेरा इंतजार करती है, मैनू महान बनाउणी है। पर कहते जिहड़ी मेरे अंदर की भरी हुई हीन भावना है उसनूं ये सब कुछ चंगा नहीं लगता। सो तू इस तरह ना करया कर, क्योंकि जे तू इस तरह करती रहेगी तो तेरा सारा जहान जिहड़ा है वो खत्म हो जाएगा, ते तू इन्हें कहर की बिजली नूं बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि रब नूं मंजूर नहीं है कि वो कोई महान होवे। सो मैं महान नहीं हाँ, तू इस तरह ना करया कर। सो लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। कहते इसलिए मेरे आने तो पहला, इसलिए मेरे आवन तो पहला, मतलब मेरे आने तो पहला ही बुझा के दीवा ला के पक्षी इंतजार, ला के पक्षी इंतजार, मीट के अखा हसीन,
मीट के अखा हसीन, सांभ के दिल विच यकीन, सांभ के दिल विच यकीन, सौ जाया कर, सौ जाया कर, जिस तरह सौ जाता है गश खा के जहान, जिस तरह सौ जाता है गश खा के जहान, गश खा के जहान। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तू कड्डे मेरी हिक विचों, मेरी हिक चों अगन बाण। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तू वेखे, तू वेखे मेरे नैना विच, मेरे नैना विच मसान। नीवी नजर, नीवी नजर मुर्दा जमीर, पिंडे ते लाश। सो कहते जो कवि है वो की कह रहा है जी, कहते तू मेरा इंतजार ना करया कर। सो जिस तरह सारा दा सारा जहान सौ जाता है, कहते तू जड़ी मेरी रात नूं उड़ीक ना कर, मैनू महान बनाने की कोशिश ना कर, क्योंकि रब नूं ये मंजूर नहीं कि कोई महान होवे, महान बने। इसलिए कहते जिस तरह उसके आउण तो पहला, इसलिए मेरे आवन तो पहला बुझा के दीवा। सो मेरे आउण तो पहला दीवा बुझा दिया कर, ते मेरी उड़ीक नूं खत्म करके दिल दे विच विश्वास नूं लैके, विश्वास संभाल के ला के पछी इंतजार, मेरा इंतजार खत्म करके अपने दिल दे विच विश्वास बना के अखां मीट के, अपने जिहड़ियां सोहणियां अखां हन उन्हां नूं मीट के, उन्हां नूं बंद करके अपने दिल दे विच विश्वास नूं संभाल के सौ जाया कर, तू जिहड़ा तू सौ जाया कर, जिस तरह सारा जहान गश जही बेहोशी दे विच सौ जाता है, सो तू भी मेरा इंतजार खत्म करके सौ जाया कर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू कड्डे मेरी हिक दे विचों अगन बाण। सो क्यों? क्योंकि कहते मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आउण ते तू मेरी हिक दे विचों दुख दे जिहड़े अगन तीर हन उन्हां नूं बाहर कड्डे, मेरा जो दिल का दर्द है उसनूं जानन दी कोशिश करे। सो मैं नहीं चाहता कि तू मेरे दिल दे अगन बाण, मेरे दिल दे विचों अगन बाण कड्डे, मेरा दिल का दुख जानन दी कोशिश करे। मैं नहीं चाहता कि तू मेरियां अखां दे विच, कहंदे तू वेखे मेरी नैना विच मसान, तू मेरियां अखां दे विच जिहड़ा है सड़ चुके मसाना नूं देखे। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी नीवी नज़र देखे, जदों मैं नीवी नज़र करके अखां दे विच सड़े हुए मसान लैके कहते आउंदा हाँ, मेरा मुर्दा शरीर लैके आउंदा हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि तू मेरियां नीवी कीती हुई नज़र नूं देखे, मेरे मुर्दा जमीर नूं तू देखे, जां मेरे पिंडे दे उपर पईयां हुईयां लाशां नूं तू देखे। मैं अजिहे नहीं चाहता कि जदों मैं आवां ते मेरे दुखां नूं तू देखे, मेरे दिल दे विच जो दुख हन उन्हां नूं तू देख लवें, मेरी नीवी कीती हुई नज़र, मेरी जिहड़ी मुर्दा जमीर ते मेरे जिहड़े शरीर के दुखां नूं तू देख लवें। सो मैं नहीं चाहता कि तू ये चीज़ां देखे। सो तू मेरे आउण तो पहला अब जिहड़ा मेरा इंतजार खत्म करके दीवा बुझा के सौ जाया कर, तां जो जिहड़ा है मेरे दुखां नूं तू देख ना सके। सो इस तरह जिहड़े भाव सन इस कविता दे विच जिहड़ा है एक मजदूर के द्वारा डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने रखे हैं कि किस तरह मजदूर की जिहड़ी हालत है वो मजदूरी करके जिहड़ी है मतलब पूरी जिहड़ी मजदूरी ना मिलने के करके हीण भावना का जिहड़ा शिकार है वो हो चुका है।
ਤੇ ਇਸ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।